गुलजार साहब, मैं मतलब आपकी बारे में बहुत बात कर चुका हूँ. I think we see Gulzar साहब not trying to solve life for us, but deepening the mystery of life. जिंदगी में और गहरे आपको ले जाते हैं और कई बार आप लोगों को तैरने के लिए खुद छोड़ देते हैं. आज तक क्या हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच गए कि बस यही है? और हर बार हम कहते हैं आने वाली नस्लों के लिए सच पूछिए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी नस्लों के लिए क्यों, वही बहुत है. डोंट गिव, बिकॉज मुझे लगता है आपकी नस्ल आपके पेरेंट्स से बेटर है, उनकी उनके दादाओं से बेटर थी, और आने वाली नस्ल क्या आप ही को फॉलो करेगी? वी आर नॉट क्रिएटिंग रोबोट्स, वी आर ह्यूमन बींग्स, है ना, और ये बदलेगा. इसीलिए मैंने कहा कि कुछ भी कायम नहीं है. कायम है जो बस मैं हूं, मैं जो बदलता रहता हूं. Good evening, everyone. My name is Asad Lalji. I'm the CEO of Avid Learning and the curator here at the Royal Opera House, Mumbai. On behalf of the royal family of Gondal, Ashish Doshi, Honorary Director, and myself, I welcome you to Mumbai and India's only surviving opera house and your city's very own cultural crown jewel. A warm welcome also to our audiences who have joined us online because of the overwhelming response, and some of our friends are in the room outside because they couldn't possibly get in. But thank you for all the support you guys have showed. The literary arts have been one of the most important and robust segments of Avid Learning's curatorial vision. Since our inception in 2009, we've strived to bring fresh perspectives and voices to the maximum city through collaborations and festivals, publishers, authors, and thought leaders creating immersive experiences for our audiences. Tonight, for a man whose shelves already hold an Oscar, a Grammy, a Dada Saheb Phalke Award, and countless Filmfare trophies, what more could be added? Perhaps only this: recognition of the form he has always held closest to his heart, literature. With the Gyanpith Award, Gulzar Saab becomes a rare figure, standing tall at the summit of both cinema and literature, an achievement unmatched in our cultural history. Gulzar Saab is no stranger to the Royal Opera House. He graced this very stage in 2018 at the launch of his daughter Meghna's book, Because He Is, offering audiences a rare glimpse of the artist as the father. He returned once again in 2022 to introduce Ustad Amjad Ali Khan, Morning Ragas, a sublime concert in celebration of Sarodkar. And tonight we are blessed to welcome him back for the third time. This evening also continues our long-standing association with HarperCollins Publishers India, which has brought out many of his bestsellers to readers across the world. So this brings me to the task at hand. HarperCollins, in association with the Royal Opera House and Avid Learning, present Celebrate the Legendary Gulzar on the occasion of his receiving the Gyanpith Award, the nation's highest literary honor. We will begin the proceedings with the eminent poet, lyricist, and screenwriter Prasoon Joshi delivering a keynote address, followed by a conversation with Gulzar Sahib. But without further ado, please welcome executive publisher HarperCollins, Udyan Mitra, to say a few words. Thank you all for being here, and have a wonderful evening. Thank you. Thank you, Asad. Lovely to be back at the Royal Opera House. I can't see anybody, but I'm sure you can all see me, so that's all right. My name is Udayan Mitra. I'm executive publisher at HarperCollins India, and really pleased to collaborate with Avid Learning as always, and to be back here at Royal Opera House. This is a very, very special evening, as all of you know. We are celebrating one of the greatest literatures of our time, Gulzar. I am going to keep this very brief, and so that you don't have to look at me alone on stage for the full length of the 3 minutes that I'm going to be on stage. I will call Gulzar Saab and Shri Prasoon Joshi on stage very, very, very shortly. But just to start off, Gulzar, as you know, was awarded the Gyanpith recently, India's highest literary honor. Many of us might have had our first introduction to Gulzar through his work in cinema.
He has been one of Indian cinema's greatest film directors, screenwriters, dialogue writers, and of course lyricists. It's his lyrics that many of us know him for. And it's very apt that more than 10 years ago he was awarded the Dadasaheb Phalke Award, which is India's highest honor in the arena of film. And Gulzar happens to be the only person so far to have been awarded both the Dadasaheb Phalke Award and the Gyanpith. Rare honor, and it reflects his remarkable work in both spheres. At this point, if we are ready, Gulzar Saab, Mr. Joshi, can we call you on stage, please? जी आप लोग तशरीफ रखिए, प्लीज़ बैठ जाइए। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि आप लोग अंधेरे में हैं, इसलिए मैं सारे चेहरे देख नहीं पाता हूँ, और मैं इस वक्त रोशनी में हूँ। आप हमें देख लीजिए, मेरे साथ प्रसून जी हैं और मैं मुद्दा हूँ इनका, और हम बात करें। So I'll keep this very brief, but it's a privilege to be able to introduce Gulzar Saab. And as all of you know, I mean, his poetry, his prose has been entertaining and inspiring us for many decades now. He has an inimitable way of looking at the world, and that comes out through his writings. He has a true affinity with and love for nature. He has a keen interest in the many nuances of human relationships. He has a wonderful sense of humor. All of these things reflect in both his poetry and his prose. And what has always struck me is his ability to capture the moment, capture a thought, capture an emotion in a few words. And he will phrase it in such a beautiful way that you'll remember it for many, many years. That is the hallmark of Gulzar. And I think that is what we all remember him for. I will very briefly talk about HarperCollins' association with Gulzar. And you see some of the books that I want to talk about. Right here, you see 2 volumes of the Tagore box set that we published, Bagban and Nindiya Chor. Very quick stories about these things. So Gulzar read Tagore in Urdu translation when he was 10 years old, and was absolutely fascinated. Later, when he learned Bengali, he always wanted to translate Tagore, and so these volumes have the original Bengali of Tagore. They have an English translation of the poems, and then Gulzar Saab's translation, which is wonderful. And it is one great poet honoring another great poet. The second volume that I very briefly want to talk about, and you can see the book in between Prasunji and Gulzar Saab on the back there, the book with the red spine, that is called A Poem a Day. And this is 279 different poets writing in various languages of India, 34 languages. And their work all translated into Hindustani by Gulzar Saab. You can imagine the ambition of the project, the scope of the project, how long it must have taken to do this, but he pulled it off. And in his inimitable way, he called it a poem a day, as if, it is just something that can just be put together like that. But the message behind it was that if you read a poem every day, you will be a better person, the world will be a better place. I had the privilege of editing that book, and there are, of course, 365 days in the year, so we said 365 poems. Just before we went to press, we had this conversation where he came up with this thing of, but what about a leap year? In the leap year, there are 366 days. So I said, yes, sir. In that case, we will add a 366th poem, and that poem will be a film lyric of yours. And I think you can get, those of you who have seen the book know which film lyric I'm talking about. It's a very famous lyric, or you can call it a poem,
from Ijazat. That is what rounded it up, and I was very proud that we included a film lyric, because as a poet, I mean, like I said right at the beginning, virtually nobody has a body of work that spans films and the literary world like Gulzar Saab's, and this was a true testament to that. And very recently, we published, last year, we published his collected poems. This is a collection of 7 volumes of his poetry. It's called Balopar. I won't take up more time and try to explain what that title means. But again, great privilege to have published that. I want to announce today that his new book with HarperCollins is forthcoming. It will be published in January 2026. We wanted to announce it here because this is the right place to announce it. The book is called Amchi Mumbai. Gulzar Saab has lived in Bombay or Mumbai for close to 70 years now. Can you imagine? And he has seen the city change before his eyes. And all his writings about Mumbai, whether it's short stories or poems, they're all collected in this book. And it's a bilingual edition again, the originals and with translations. Rakshanda Jalil translated Balopar, all the poems in Balopar, and she is the translator on this new volume as well. So we are really looking forward to launching that, and I think Gulzar Saab is today going to read one of the poems from that collection, if I'm not mistaken. So that's really it from me. I just want to say how privileged we are to publish Gulzar Saab. For all of us as readers to be able to read him. He is 91 years old. He still writes every day. And that is what makes him Gulzar. There is no end to the journey. We will continue to read him for many, many decades to come. Next generations will continue to read him just as previous generations have. And we are very privileged to have him amongst us, not just in this house today, but in this world with us. Thank you, sir, for being with us. And thanks to Prasunji, no better person to really be in conversation with Gulzar Saab. And again, a multifaceted talent. I won't take time in introducing him. You all know Prasunji. And without further ado, if I might invite Prasunji to deliver the keynote address and then start the conversation with Gulzar Saab. Thank you. First of all, thank you for this opportunity, and it's so great to see so many lovers of Gulzar Saab's poetry in room here today. So thank you all of you for being wonderful. I can hear the claps and I can see वो सही जगह पे आ रहे हैं. तो I know Gulzar Saab से आपका रास्ता क्या है. I can speak about Gulzar Saab for hours, and मुझे कुछ उसके लिए सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि he's just sort of out there in me since one has grown. But I have prepared a few points because I don't want to leave anything which in my sort of passion I forget that I have to mention. गुलजार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उनके इस रार पे मैं यहाँ पे हूँ और आपकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ. And I wouldn't have missed the opportunity to talk about you, with you. कुछ भी होता मैं आता ही आज. So thank you for this, Gulzar Saab, and HarperCollins for organizing this. मुझे एक्चुअली किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोलना है, एक युग के बारे में बोलना है. और ये बड़े साहस का काम है. एक तरफ तो मैं कहूँगा गुलजार साहब का ये सौभाग्य है या फिल्मों का ये सौभाग्य है कि गुलजार साहब और फिल्म मिले. But somewhere what has happened is, because the power of the medium, I think Gulzar Saab's literary work
उसको हम इतना उसके बारे में बात नहीं करते, बिकॉज फिल्मों से जुड़ी बातें इतनी ज्यादा हो जाती है दैट वी फॉरगेट दैट गुलजार साहब के डिमेंशंस क्या क्या है. ही इज एक वृक्ष है जिसकी शाखाएं बहुत जगह तक नृत्य करती है. एंड आई फेल्ट दैट टुडे वी शुड टॉक अबाउट हिज लिटरेरी वर्क, विच गुलजार साहब ने इतनी उनकी शोहरत थी उनके गानों की, लेकिन उनका जो कवि कर्म जिसे कहते हैं आप, द पोएट्स वर्क, ही हैज नेवर इग्नोर्ड दैट. जैसे कि अभी कह रहे थे कि ही राइट्स एवरी डे, एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू सी दैट. इतने अवार्ड्स गुलजार साहब को मिले हैं, अवार्ड्स की शोभा बढ़ी है, गुलजार साहब ने वो अवार्ड लिए हैं. लेकिन आई थिंक उनकी अवार्ड्स की श्रृंखला में ज्ञानपीठ उनके लिए भी बहुत महत्व रखता है. आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. टू वन राउंड ऑफ अप्लॉज एंड फॉर गुलजार साहब फॉर दैट. If we are talking about his creations, I think we all know that गुलजार साहब की जो कविता है, गुलजार साहब की जो क्रिएशंस हैं, गुलजार साहब का जो साहित्य है, उसमें एक बड़ी खासियत है कि कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है. जिंदगी की कोई भी चीज़ गुलजार साहब को छोटी नहीं लगती है. सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ भी गुलजार साहब की पोइट्री में उसकी जगह है. There is no hierarchy for him. I've seen that ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, इन पर कविता होनी चाहिए, और ये बहुत छोटी सी अदनी सी चीज़ है. लेकिन वो छोटी सी चीज़ भी गुलजार साहब की पोइट्री में ऐसा लगता है कि मैंने इसकी तरफ क्यों नहीं देखा, इतनी खूबसूरत चीज़ मैंने कैसे छोड़ दी. अब देखिए, यही एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि मुझे खर्ची का पूरा एक दिन रोज़ मिलता है, मगर रोज़ कोई छीन लेता है अंटी से. कभी खीसे से गिर पड़ता है तो गिरने की आहट भी नहीं होती. ही इज नॉट बायस्ड. उनकी रचनाओं में अठन्नी चवन्नी आज भी वैसे ही खनकती है जैसे तब खनकती थी जब उसकी कोई वैल्यू थी, जब आपसे कुछ खरीद सकते थे. लेकिन वो चवन्नी की गरिमा, उसकी साउंड की इज्जत गुलजार साहब की पोइट्री में आपको दिखाई देती है कि उसकी वैल्यू कितनी ही हो. दिस इज अ पोएट्स हार्ट. उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, उसकी साउंड की वैल्यू है, उसकी ब्यूटी की वैल्यू है, उसकी इमेज की वैल्यू है. दैट्स गुलजार साहब फॉर यू. ये कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूं कि छोटी चीजों को गुलजार साहब बहुत अहमियत देते हैं, बट आई हैव गुलजार साहब लुक्ड एट सम ऑफ योर वर्क एंड आई हैव सीन कि जब आप प्रोफाउंड की बातें करते हैं और कितनी सहजता से he talks about something which is profound, which is eternal. मैं दीवार की इस जानिब हूं, इस जानिब तो धूप भी है, हरियाली भी. मैं दीवार की इस जानिब हूं, इस जानिब तो धूप भी है, हरियाली भी. ओस भी गिरती है पत्तों पर, जो मौसम आता है सारे रस देता है. लेकिन इस दीवार की दूसरी जानिब क्यों ऐसा सन्नाटा है? कौन है जो आवाज नहीं करता लेकिन दीवार से टेक लगाए बैठा रहता है? गुलजार साहब फॉर यू. सो ही टेक्स यू इनटू अ डिफरेंट रेल्म हियर, एंड जिस ईज से वो कहते हैं उससे आपको पता लगता है कि ये जिसे कहते हैं अनुभूत सत्य, ये किसी और का उधार लिया हुआ ट्रूथ नहीं है, ये भोगा हुआ सच है, ये लिव्ड ट्रूथ है जो गुलजार साहब इतनी सहजता से कह पाते हैं. चाहे वो रोजमर्रा की बात हो या दार्शनिक बात हो. मैंने एक चीज और गुलजार साहब आपकी रचनाओं में देखी है, कड़वाहट कभी नहीं होती. मैं जब भी गुलजार साहब से मिलता हूं तो जैसे उनसे हाथ मिलाऊंगा तो थोड़ी देर तक गुलजार साहब हाथ थामे रखते हैं, और तब मुझे ये लगता है कि जिंदगी को गुलजार साहब के स्पर्श जैसा ही होना चाहिए. गुनगुना और खुरदुराहट से दूर, करवाहट से पड़े. हर बार मुझे यही लगता है कि जैसे जिंदगी शायद ऐसी ही होनी चाहिए, गुनगुनी.
It's not that he has not, I think all of us not have been that fortunate, but you can see the reflection of this in his work all the time. वो ऐसा नहीं है कि तीखी मिर्ची जैसे व्यंग नहीं करते, पर गुलजार साहब जब व्यंग करते हैं तो उसके बाद आपको एक गुड़ की डली देना भूलते नहीं है, जाते जाते आपके हाथ में दे देते। इतनी अहम बात वो बोल देते हैं, आप तक पहुंचा देते हैं और कड़वाहट नहीं आती। अब देखिए ये मोबाइल फोन्स पर उनका टेक है, एक मैयत में देखा कान लगाए कोई, सरगोशी में बोल रहा था। एक मैयत में देखा कान लगाए कोई, सरगोशी में बोल रहा था, शायद पूछ रहा हो किसी फरिश्ते से, गया है जो वो पहुंचा कि नहीं। एक तरफ गुलजार साहब उस पेड़ की तरह हैं जिसे आपने धूप में तपते देखा है, सालों से देख रहे हैं, बारिशों में भीगते देखा है। वो ऐसा पेड़ भी है जिसकी शाखों पर हमने झूले डाले। बट आई डोंट थिंक ओनली कंपेयरिंग हिम टू अ ट्री इज गुड इनफ। आई थिंक देयर इज अ रिवर देयर, और इस रिवर की आप कमाल देखिए साहब कि ये चंचल भी है, खामोश भी है। देयर इज अ ग्रेस इन द फ्लो ऑल द टाइम। ही इज टॉकिंग अबाउट एफर्वेसेंस, बट उसके बीच में आप देखेंगे छींटे उड़ते हैं लेकिन खामोशी भी रहती। एक्चुअली गुलजार साहब, मैंने सिंस पीपल आर वार्मिंग अप टू यू, मैं पोइट्री की फॉर्म में बताता हूँ मैं क्या लिख रहा था जब मुझे कहा कि गुलजार साहब के बारे में बोलना है। हाँ, मैं एक ऐसे गांव को जानता हूं, हाँ मैं ऐसे गांव को जानता हूं जहां बचपन नंगे पांव बेपरवाह छाया को पकड़ने के लिए आज भी वैसे ही दौड़ता है। हाँ, मैं ऐसे गांव को जानता हूं जहां बचपन नंगे पांव बेपरवाह छाया को पकड़ने के लिए आज भी वैसे ही दौड़ता है। हाँ, मैं ऐसी गली को जानता हूं जहां आज भी साइकिल की चेन अक्सर उतर जाया करती है। हाँ, मैं एक ऐसी गली को जानता हूं जहां आज भी साइकिल की चेन अक्सर उतर जाया करती है, जहां दोस्तों से झूठी मूठी दूसरों का नाम लेकर बस उसकी बातें करने की रवायत बिना मिलावट बदस्तूर चलती है। हाँ, मैं जानता हूं उस मोहल्ले को जिसके घर के आंगन में बुजुर्ग पेड़ खड़े रहते हैं रखवाली करने को। हाँ, मैं जानता हूं उस मोहल्ले को जिसके घर के आंगन में बुजुर्ग पेड़ खड़े रहते हैं रखवाली करने को, और रोशनदान में बैठा एक कबूतर आज भी अपनी मादा से वैसे ही गुटरगू कहता है। These are all excerpts from his poems. हाँ, मैं जानता हूं ऐसी एक छत को जहां ठंडी सफेद चादरों पे धड़कनें देर रात तक जागती है। हाँ, मैं जानता हूं ऐसी एक छत को जहां ठंडी सफेद चादरों पे धड़कनें देर रात तक जागती हैं, और उस छत को भी जो रुक रुक के टपकती है। मैं जानता हूं उन सीढ़ियों को जिनसे दबे पांव इश्क उतरता है। मैं जानता हूं उन सीढ़ियों को जिनसे दबे पांव इश्क उतरता है। मैं जानता हूं उन बंद अलमारियों को जिनके शीशों से किताबें झांकती हैं। मैंने समय के चक्र को घूमता देखा है। मैंने समय के चक्र को घूमता देखा है, और उसके साथ साथ घूमते देखा है चप्पा चप्पा एक चरखा। मैंने समय को घूमते देखा है, मैंने समय के चक्र को घूमते देखा है, और उसके साथ साथ घूमते देखा है चप्पा चप्पा एक चरखा। चरखा जो वक्त के पानियों में डुबकी लगाता है और छई छप्पा छई कहता हुआ छींटे उड़ाता है। हाँ, मैं जानता हूं ऐसे एक शहर को जहां ईंट पत्थरों की इमारतों के बीच एक खिड़की रहती है। ये मुंबई शहर है जहां गुलजार साहब वाली खिड़की रहती है। हाँ, मैं जानता हूं एक ऐसे शहर को जहां ईंट
पत्थरों की इमारतों के बीच एक खिड़की रहती है, तूफानों के बीच एक झोंका रहता है। मैं जानता हूं उस झोंके का पता, मैं जानता हूं उस झोंके का पता। वैसे बहुत कम हवाएं होती हैं जो तुम्हें अपना पता सही सही बताती हैं। वैसे बहुत कम हवाएं होती हैं जो तुम्हें अपना पता सही सही बताती हैं, जो तुम्हें अपने घर खुद बुलाती हैं। हाँ, मैं जानता हूं ऐसी दुनिया को जहां साबुत हंसी और ताजा घाव रहते हैं। मैं जानता हूं ऐसी एक दुनिया को जहां साबुत हंसी और ताजा घाव रहते हैं। हाँ, जानता हूं उसे जो बहती नदी है, ठहरा समंदर है और एक तिरछी बौछार है। हाँ, जानता हूं उसे जो बहती नदी है, ठहरा समंदर है और एक तिरछी बौछार है। वो कोई व्यक्ति नहीं, एक समूचा संसार है जो एक दशक को नहीं, कुछ सालों को नहीं, पूरे एक युग को स्वीकार है। हाँ, मैं उस युग को जानता हूं जिसका नाम गुलजार है। गुलजार साहब ने मुझसे आग्रह किया था कि मैं एक दो रचनाएं अपनी पढ़कर इस बात को कॉन्वर्सेशन की तरफ ले जाऊंगा। I can talk about Gulzar Saab endlessly. A lot of people ask me, what do you think about the new generation, about his, his familiarity with Gulzar Saab's work? तो मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि गुलजार साहब वो संस्कार हैं जो हमें बच्चों में डालने ही चाहिए। This is our responsibility to familiarize our next generation with Gulzar Saab's work. Because it's a continuum. आज गुलजार साहब की तरह लिखना अपने आप में, हमारी जनरेशन में जब हम बड़े हो रहे थे तो एक तरह से स्वतः स्फूर्त होता था। It is on its own it used to come in. I think that continuum, it's our responsibility that we share it with our coming generation. गुलजार साहब के जब कविता की बात हो रही है तो मैंने जब कविता के बारे में सोचना शुरू किया तो मैंने ये लिखा था पहले, वो मैं आपसे शेयर करता हूं क्योंकि गुलजार साहब का आग्रह है कि मैं कुछ सुनाऊं। क्या है कविता? क्या भावनाओं की झील में छलांग लगाकर मोतियों भरी हथेली लेकर निकलना है कविता? क्या है कविता? क्या भावनाओं की झील में छलांग लगाकर मोतियों भरी हथेली लेकर निकलना है कविता? क्या भाषा को मेहनत करने के लिए उकसाना है कविता? क्या भाषा को मेहनत करने के लिए उकसाना है कविता? क्या समाज को जगाना है कविता? या कुछ बताना, कुछ छुपाना और बिन कुछ कहे सब कुछ कह जाना है कविता? क्या कुंठाओं की खरपतवार के बीच एक विचार अंकुर का सर उठाना है कविता? क्या कुंठाओं की खरपतवार के बीच एक विचार अंकुर का सर उठाना है कविता? या फिर संवेदनाओं के दीप को शब्दों की ओट में तूफानों से बचाना है कविता? या फिर संवेदना के दीप को शब्दों की ओट में तूफान से बचाना है कविता? या इतिहास जिसे भुला दे, राजनीति जिसे नजरअंदाज करे, उस मासूम से सच को जिंदा रखना है कविता? शायद और भी बहुत कुछ है कविता, पर अगर सरलता से सोचें तो शायद 2 घड़ी ठहर कर जिंदगी की नदी को बहते हुए देखना है कविता। गुलजार साहब के ही बारे में बात होगी और गुलजार साहब को जो पसंद है वही बात होगी आज। मैं तो अपनी, एक कवि को आप माइक दें तो अपनी कविताएं सुनाना शुरू करेगा। But I had decided I will not recite anything which Gulzar Saab has not liked. And the reason we have connected, the reason he honors me and thinks that I should be speaking about him today, उसके जो कारण हैं वो I think he likes me holding my hand, that's a different thing. But I think the work which we have shared. So एक दो चीज़ें वो सुना दूंगा आपको। एक आपको बहुत पसंद थी कि धूप के सिक्के उठाकर गुनगुनाने दो उसे।
धूप के सिक्के उठाकर गुनगुनाने दो उसे, बैंगनी कंचे हथेली पर सजाने दो उसे। धूप के सिक्के उठाकर गुनगुनाने दो उसे, बैंगनी कंचे हथेली पर सजाने दो उसे। भोली भाली रहने दो जिंदगी को बहने दो। बारूद जब बच्चा था तब तितली पकड़ता था। बारूद जब बच्चा था तब तितली पकड़ता था, वो अंबिया भी चुराता था, पतंगों पर झगड़ता था। बारूद जब बच्चा था तब तितली पकड़ता था, वो अंबिया भी चुराता था, पतंगों पर झगड़ता था। अगर तुम उसका मांझा लूटते वो कुछ नहीं कहता। अगर तुम उसका मांझा लूटते वो कुछ नहीं कहता। थोड़ा नाराज तो होता मगर वो फिर भी खुश रहता। मगर धोखे से तुमने उसका बचपन भी तो लूटा है। मगर धोखे से तुमने उसका बचपन भी तो लूटा है। जरा देखो तो उसकी आंख में वो कब से रूठा है। जुगनुओं की रोशनी में दिल लगाने दो उसे, धूप के सिक्के उठाकर गुनगुनाने दो उसे। बहुत जल्दी दुपट्टे ओढ़ना सिखला रहे हैं हम। बहुत जल्दी दुपट्टे ओढ़ना सिखला रहे हैं हम। क्यों जिंदगी को रात से मिलवा रहे हैं हम। वो पल्लू से चिपक के मां के चलती थी तो अच्छी थी। वो पल्लू से चिपक के मां के चलती थी तो अच्छी थी। अकेला छोड़कर उसको क्या कहना चाह रहे हैं हम। एक गहरी नींद से हमको जगाने दो उसे, धूप के सिक्के उठाकर गुनगुनाने दो उसे, बैंगनी कंचे हथेली पर सजाने दो उसे। भोली भाली रहने दो जिंदगी को बहने दो। I'll finish with the song which he also likes. ये मैंने एक फिल्म थी फिर मिलेंगे उसके लिए लिखा था कि खुल के मुस्कुरा ले तू दर्द को शर्माने दे। खुल के मुस्कुरा ले तू दर्द को शर्माने दे। बूंदों को धरती पर साज एक बजाने दे। हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा। गगन के गाल को चल जाके छूले जरा। खुल के मुस्कुरा ले तू दर्द को शर्माने दे। बूंदों को धरती पर साज एक बजाने दे। झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है। झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, और नदी शरारत है तेरे संग बहती है। झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, और नदी शरारत है तेरे संग बहती है। उतार गम के मोजे, उतार गम के मोजे, जमी को गुनगुनाने दे। कंकरों को तलवों में गुदगुदी मचाने दे। उतार गम के मोजे, जमी को गुनगुनाने दे। कंकरों को तलवों में गुदगुदी मचाने दे। हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा। गगन के गाल को चल जाके छूले जरा। खुल के मुस्कुरा ले तू दर्द को शर्माने दे। Over to Gulzar Saab. I can go on and on about him. पता नहीं मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ थोड़ा थोड़ा इसमें, क्योंकि एक तो आप सबका शुक्रिया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये अवार्ड मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आपकी आवाज़ सुनकर कुछ और अच्छा लग रहा। और ऐसा है कि जैसे मुझे मिल गया था, मुझे खबर थी और मैंने ले भी लिया था, महफूज था, लेकिन एहसास आज हुआ सुनकर आपकी ज़बान से। मेरे लिए थोड़ा सा एम्बैरेसिंग था कि वो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं और शेर बहुत अच्छा कह रहे हैं, तो मैं वाह वाह कहूँ, अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, तो उनके लिए कह रहा हूँ। तो मैं बड़े धीरे धीरे से बोल रहा था कि वह इतनी अच्छी खूबसूरत ज़बान में इतनी, मुझे लगा कि और कई अवार्ड आपने साथ में जमा कर दिए मेरे।
और वो कहते हैं ना चेरी ऑन द केक, ऐसा कुछ अंग्रेजी में एक मुहावरा है ना। तो मैं तो केक खा भी चुका था और चेरी आज मिली। अब शुक्रगुजार हूँ मैं। 2-3 लोग यहाँ पे मौजूद हैं, पर हार्पर कॉलिंस, इनके साथ मैंने बहुत किताबें शेयर की और 2 कमाल के इंसान हैं वहाँ पे। एक तो आनंद जी, आनंद पद्मनाभन जी, उनका पैशन किताबों के लिए और इस तरह से शौक किताबों का, और दूसरे उदयन मोहत्रा जो मेरे एडिटर रहे शुरू से। और मैं बल्कि अगर ये हो कि अगर वो एडिटर नहीं है तो मैं किताब छापने को तैयार नहीं हूँ। और मैं कहूँ कि मेरा बड़ा काम जितना है वो बड़ा काम मतलब वज़न वाला, अल्फाज में नहीं, किताबों वाला भी। किताबें मतलब सिर्फ वज़न के बात में वज़न है, मुझे उन किताबों का भी वज़न लगता है कि उससे आप वर्जिश भी कर सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी किताबें। तो जी हाँ, ये देखिए ना, और ये करने का पैशन, ये करने का की हिम्मत, यकीन मानिए ऐसा पब्लिशर मिल जाए किसी राइटर को तो बड़ा खुशकिस्मत है। मैं ऐसी किताबें जिसमें जब टैगोर की 2 वॉल्यूम्स मैंने शाया की, ये मेरा हक बनता है कि मैं ये बताऊं कि मैंने लिखा क्या, वो बाद में बताऊंगा, पर मुझे किसने संभाला है वो बताना बड़ा ज़रूरी है। कि किताब इस तरह मैंने दूसरी नहीं देखी थी। टैगोर की नज़में पढ़ के जहाँ से मैं पला, जहाँ से बड़ा हुआ, तो मुझे उनके तर्जुमे उर्दू में मिले थे पहली बार, तो बहुत अच्छे नहीं लगे थे। बहुत अच्छे तब लगे जब मैं समझ में आने लगा, लेकिन पढ़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ उग रहा है। और बड़ा मतलब स्कूल टाइम की बात है जहाँ से ये शुरू हुआ मेरी यहाँ ये जो हम आखते हैं यहाँ से शुरू की मैंने, तो वो दौर था। और हाथ डालना मैंने तर्जुमे किए हैं बहुत सारे, लेकिन गुरुदेव को हाथ डालते हुए डर लगता था। और वो मैंने उनकी किताब गार्डनर जहाँ से शुरू किया था ये सफ़र, उसकी ट्रांसलेशन मैंने की जब मैं मेरा ख्याल में 60-70 की उम्र तक पहुँच गया था, और लिखते हुए भी बरसे हो गए थे, बहुत से बरस गुजर गए थे। आप जब हम लोग तो आपकी रचनाएं पढ़ के बड़े हुए, हमने देखा क्या तहजीब है लिखने की आपसे। आपके बारे में अगर कहें कि आपने किसको देखकर आपको ऐसा लगा हो आपके अंदर, जैसे आपने कहा कि उगा, और बचपन में किस चीज़ से आप मुतासिर हुए? जी, मैं एक तरह से वही बयान कर रहा था कि मैं मेरा ख्याल है MB मिडिल स्कूल में पढ़ता था, जिसको मैं बड़े शौक से MB मिडिल कहा करता था, और बाद में मालूम हुआ कि वो म्यूनिसिपल बोर्ड स्कूल है, और उसमें पढ़ रहा था मैं। और उस ज़माने में पार्टीशन का टाइम था, तो बहुत सी लाइब्रेरियाँ खुल गई थी या किताबें दी जाती थी इस तरह किराए पर के। हफ्ते में 4 आने दो, जिस चवन्नी की आप बात कर रहे थे वो चमकती है, गोल्ड है, हाँ, कि वो चवन्नी दो और एक हफ्ता भर में तुमको किताबें जो भी जितनी पढ़ सकते हो पढ़ लो। और मैं जासूसी किस्म की उस किस्म के थ्रिलर वो लेकर आता था। एक वो जो सरदार जी थे, रेफ्यूजी थे, उन्होंने वो अखबारों का बिजनेस शुरू किया था, और वो 4 आने में रोज जासूसी नॉवलों का ये खूबी है कि वो जब तक आप ख़त्म नहीं करें, लास्ट सस्पेंस खुले नहीं, जब तक आप पढ़ते रहते हैं। तो मैं रात में पढ़ लेता था। वो तंग आ गया था मुझसे कि कितनी किताबें दूंगा मैं, तो ये 4 आने में चला आता रोज, ये किताब ले, ये ले जाओ, और नहीं है मेरे पास। एंड दैट वाज उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ टैगोर्स गार्डनर। तो जो आप कह रहे हैं कि मुझसे वो इन्फ्लुएंस तो मतलब बगैर समझे भी हो जाते हैं, और लेकिन उसकी फील जो है, जो नज़्म की सबसे बड़ी बात है कि शायरी का फील पहले आता है, और
उसका एहसास पहले आता है और उसके बाद उसको समझने की कोशिश होती है। मेरा ख्याल है सारी सब इसी एजुकेशन कुछ इसी तरह से शुरू होती है। आप पंडितों से श्लोक सुनते रहते हैं और एक दिन समझ में आने लगता है तो तब पता चलता है तो बहुत बड़ी बात है। तो भगवत गीता में पढ़ें, है ना, तो इसी तरह होता है। तो उस जमाने में वो जमाने में सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि वो ट्रांसलेशन जब मैंने 60-70 की उम्र में किया है तो तीनों जबानों में टैगोर के ओरिजिनल, टैगोर के अपने ट्रांसलेशन जिसमें वो लाइनें बदल देते हैं, क्योंकि मैं बांग्ला सीख गया था और उसके बाद मैंने ओरिजिनल का ट्रांसलेशन किया और 3 जबानों में ओरिजिनल बांग्ला, अंग्रेजी और उसके साथ मेरा हिंदी, ये ट्रांसलेशन करना, ये हार्पर कॉलिंस का पहला मेरा वॉल्यूम थी। विच आई वंडर दिस पैशन ऑफ द टू पीपल कि साहब एक किताब 3 जबानों में छपी हुई है। ये पहला तजुर्बा था और ये मैं बात कहना चाहता था। लेकिन की आप बात कर रहे हैं, आई वाज टू आस्क दिस थिंकिंग ऑफ आस्किंग यू लेटर, बट सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसलेशन, जब इतनी ज़बानें आप जानते हैं और आपको किसी भाषा का एक शब्द बहुत एप्ट लग रहा है तो वो आपसे जिद कर रहा है कि मुझे तो रख ले भाई, बिल्कुल मुझे मत बदल, बिल्कुल सही। तो उस वक्त आप पैरेलल लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल करते? मैं अक्सर नहीं कहता, ओरिजिनल कहता हूँ और उसे अपनी ज़बान में समझा देता हूँ। अगले मिसरे में समझा दूंगा। यहाँ अरुण छोटे बैठे हुए हैं, मराठी के शायर हैं जिनके साथ मेरे मराठी के सबक शुरू हुए थे। जी। मैंने कुसुम अग्रज को जब पढ़ना शुरू किया तो उनके साथ बैठ जाता था। मेरे मराठी यहाँ के महाराष्ट्रियन दोस्त मुझसे तंग आ चुके थे, उसके पास मत जाओ यार, वो मराठी पढ़वाएगा तुमसे, इसलिए भी नहीं मिलते थे। तो कुसुम अग्रज को, PL देशपांडे को, उनको सुना और मतलब मराठी की लाइनें मुझे उस तरह से नहीं अदा करनी आती, लेकिन लफ्ज़ अगर इस्तेमाल कर लिया है मैंने तो उसको अगले मिसरे में समझा देता हूँ मैं। अंग्रेजी के लफ्ज़ भी ऐसे करता हूँ मैं कई बार कि ये जो चक्करदार जीना है जो ऊपर चढ़ता है, स्पाइरल कहेंगे अंग्रेजी में शायद, तो ये अगला मिसरा आ गया कि मैं क्या समझाऊँ, क्योंकि इक्विवेलेंट मीनिंग मिल सकते हैं आपको, वो एहसास नहीं मिलता, वो जो फील है वो नहीं आती। इसलिए और इतनी खूबसूरत इतनी सारी ज़बानें हैं हमारे यहाँ कि आप रह नहीं सकते बगैर मुतासिर हुए। आप आज भी ज़रा सा गौर से देखिए, हर शख्स दिन में कम से कम 4 से 5 ज़बानें टकराती हैं उसके कान में। हिंदी जो वो खुद बोलता है, अंग्रेजी जो उसने पढ़ी है, और मादरी ज़बान में कोई अपना गांव वाला मिल गया उसने तो मादरी ज़बान में बात करता है। और बाकी मुंबई के शहर में घूमते हुए आपको 2-3 ज़बानें वैसे ही कान में पड़ जाती हैं। वो सरदार जी क्या कह रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं क्या, है ना। पर गुलजार साहब एक और चीज़ इसमें सवाल आ जाता है कि लाइक आई थिंक सम पीपल वुड हैव लव टू नो दिस आल्सो कि जब आप जैसा माय वॉइस so what I was saying is that when he's translating, एक चीज़ होता है कि आपने ट्रांसलेट किया, आप उस थॉट को पकड़ के उसको आपने पेश किया लोगों के सामने, पर आप जैसा एक अकम्पलिश्ड राइटर who has his own thought process and might feel very differently और कोई एक different आपके image आ रही है, आप उससे परहेज कैसे करते हैं कि इस शख्स ने जो कहा है, इस राइटर ने जो कहा है और मैं अब यहाँ कुछ अपना सोचने लगा हूँ, आई डोंट हैव टू गेट इन्फ्लुएंस बाय माई सेल्फ, अपने को खुद से कैसे अपनी राइटिंग को वहाँ आने से कैसे बचाते हैं कि वो उस शख्स से ज़्यादा कह गए आप या उससे कहीं और निकल गए आप, क्योंकि आप खुद एक इतने अकम्पलिश्ड राइटर हैं। मैं एक अर्ज करूँ, मेरी आवाज़ आ रही है ना, कि मैं जिससे इम्प्रेस होता हूँ ना
उसको अपनी ज़बान में मैं अडेप्ट करने की कोशिश नहीं करता, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ और उसका जिक्र करता हूँ। आपकी शायरी जिस तरह से मुझे मुतासिर करती है, मैं उससे लेके अपनी शायरी नहीं करता। मेरी ऐसी नज़में भी हैं कि मैंने जिसमें शायरों को ये कहा है कि अचानक पढ़ते पढ़ते हिचकी आई और फिर कुछ सांस रुकी, क्या शेर कहा है तुमने। इस घर में बस उम्मीद की रोशनी है इस घर में, इस घर में रोशनी का यही इंतज़ाम है। वो शेर है नौजवान का जो गुजर गए पाकिस्तान में। तो मैंने उनके शेर में नज़म, उनकी तारीफ में नज़म कह ली कि आपने मुझे बहुत मुतासिर किया है। आपने क्या किया अभी मेरे साथ, आप बताइए। मैं तो कसीदे काट रहा था। हाँ, मैं तो आपने तो आया ही आपकी बजती तारीफ हुई अठन्नी भी आपने मेरा रेफरेंस दिया है, आपने वो दरियाओं का भी रेफरेंस दिया है और वो बचपन के भी रेफरेंस दिए हैं और जिसकी चेन उतर जाती वो भी रेफरेंस दिया है। तो आपने क्या मेड अ ट्रिब्यूट टू यू सर। हाँ, तो मैं वही करता हूँ। तो मैं क्या कॉपी करने की कोशिश नहीं, जिसका जो ड्यू है उसे देता हूँ ना मैं। सो माय क्वेश्चन वाज तो सर, कि वो मैं तो अपनी- आप उसको ड्यू देते हैं, लेकिन आप इतने मकबूल, खुद इतने आप सक्षम लेखक हैं, आपका इन्फ्लुएंस उस पे तो नहीं आ जाता कि ट्रांसलेशन के टाइम पे, ये मैं कह रहा हूँ। आपकी अपनी थिंकिंग तो कहीं नहीं, मैं इस ये जैसे बड़ा ज़ाती किस्म का होता है और मैं वही कहने की कोशिश करता हूँ कि जो मैंने महसूस किया है। और कई बार नज़्म लिखने के बाद बहुत देर तक छोड़ देता हूँ और इसलिए उसे मतलब एक साल भी, 1.5 साल, 2 साल भी रह जाती है नज़्म उस तरह से कि क्या यही है जो मैंने महसूस किया था, ये वो नहीं कि जिससे पढ़ के मैं या जिसे देख के मैं मुतासिर हुआ था। डिड आई फील दिस इमेज, क्योंकि मैं सवाल सिर्फ इमेज संभालने का नहीं है, वो एहसास जो मेरे अंदर आया है, हैव आई बीन एबल टू ट्रांसफर इट, मैं वो कम्युनिकेट कर पाया कि नहीं जो एग्जैक्टली मैंने महसूस किया था। अगर मैंने ये एक मैयत पे किसी को ऊंचा बोलते हुए देखा, कोशिश कर रहा है तो क्या पूछ रहा है वो जो गया वो पहुंचा कि नहीं, तो ये कहाँ से आया, ये तो कहीं पढ़ के नहीं आया और किसी से सुन के नहीं आया। कोशिश ये है कि जो महसूस किया है वो पाजी नज़मों के नाम से भी मैंने कुछ किताबें निकाली। हाँ, तो वो वही एहसास है जो मैंने महसूस किया और कोशिश करता हूँ कि वो उतना ही रहे और वही रहे जो प्योरली मैंने महसूस किया है। गुलजार साहब, आप यू स्विच सो मेनी फॉर्म्स, आप कविता भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं, स्क्रीन प्लेस भी लिखते हैं, यू मियांडर एंड यू स्विच। तो जब एक फॉर्म से आप दूसरी फॉर्म, एंड द पीपल हु हैव सीन यू एफर्टलेसली डूइंग इट वुड लव टू नो कि आप जब फॉर्म शिफ्ट करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि आप गद्य जो है वो पद्य में आ जाता है, कहीं कविता करते करते आपने सोचा कि भाई अब मैं कहानी लिख रहा हूँ और कहानी कवितामय हो जाती है, पोएटिक हो जाती है ज़्यादा। इस हाउ डू यू कीप दिस कंपार्टमेंटलाइजेशन, और यू I mean, of course, every writer has an instinctive process, but we would love to know here कि how do you compartmentalize or how do you switch forms? इतनी forms में आप लिखते हैं। जी, ऐसा है कि मैं कहानी भी लिखता हूँ लेकिन बहुत कम लिखी। नज़्म की फॉर्म मुझे फ़ौरन छूती है आके, और नज़्म में खूबी है कि वो मुख्तसर भी है और उतनी सी बात कहनी है, मुझे उसके ऐसे नहीं बनाना, उसकी कहानी नहीं बनानी है। तो कई बार ये होता है कि महसूस किया है इसमें एक पीछे बड़ी दास्तान है, कोशिश करता हूँ, अगर वो कोशिश क्या करता हूँ जिस तरह से स्पॉन्टेनियसली महसूस होता है, कोशिश करता हूँ कि उसी फॉर्म में कहूँ जिस तरह से मैंने महसूस किया, क्योंकि वो फॉर्म आती है आपके एहसास से। जिस तरह मैं इसकी मिसाल क्या दूँ कि आप बीच पे अगर सनसेट देख रहे हैं तो
आम सुनी हुई बातें आती हैं कि क्या बिल्कुल पेंटिंग लगता है, और पेंटिंग देखी किसी सनसेट की तो कहते हैं बिल्कुल रियल लगता है। हाउ यू कॉम्प्लीमेंट द टू। मुझे ये महसूस हुआ था कि मैं रोज जब शफक को देखता हूं तो जी चाहता है मैं इसको हाथों पे मल के आऊं और तेरे रुखसारों के ऊपर मल दूं। क्या बात। तो हाउ यू हैव फेल्ट इट। अगर दूसरे की बातें सुनी है तो वो पेंटिंग की बात हो गई, है ना। लेकिन अब ये इसके ऊपर ये नज्म ही की फॉर्म है तो नज्म ही में रहेगी, और मैंने करतब दिखाने की कोशिश नहीं की। नहीं, मैं कहानी भी लिख लेता हूँ, मैं स्क्रीन प्ले भी लिखता हूँ, वो दिखाने की कोशिश नहीं, क्योंकि मैं लिटरेचर के साथ कबड्डी नहीं खेलता। साहब, आपकी पोइट्री में कई बार हम लोग ओपन एंडेडनेस देखते हैं कि आप हम पर छोड़ देते हैं, कई बार आप उसको लटका के खूंटी पे छोड़ जाते हैं। ये आप इंटेंशनली करते हैं या ये होता है आपसे? योर थिंग्स आर लेफ्ट टू इंटरप्रिटेशन, यू वांट दैट टू हैपन। आप कोशिश करते हैं कि किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचूं, या हमको पहुंचाना चाहते हैं? ये हर नज्म के साथ तो नहीं है, नहीं, पर कई नज़मों के साथ आपकी खूबसूरती लेकिन है। ज्यादातर नज़में ऐसी हैं क्योंकि यू कैन नॉट गिव अ कंक्लूजन ऑफ एनी फील्ड फॉर द लाइफ, क्योंकि जो एहसास एक दफ़ा महसूस हुआ है वो कल दूसरे को किसी और तरह भी महसूस होता है, उसकी इंटरप्रिटेशन भी और हो सकती है। और ये भी कि बस ये ज़िंदगी का तत्व मेरे हाथ में आ गया, ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया। मुझे लगता है ये तो हर पल बदलती है, कुछ भी कायम नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी कायम नहीं है, कुछ भी नहीं। रात दिन गिर रहे हैं चौसर पर, औंधी सीधी सी कौड़ियों की तरह। क्या बात। ताश के रंग हाथ लगते हैं और रोज धूप और छाँव की तरह उंगलियों से फिसलते जाते हैं। कुछ भी कायम नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक मैं हूं, मैं जो पल पल बदलता रहता हूं। वाह वाह वाह, क्या बात। तो अब इसमें खुला छोड़ दिया, लेकिन खुला छोड़ दिया क्योंकि आप और तरह महसूस कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए कहीं कहीं ये लगता है कि नहीं, अपनी तरह से ही जैसे आप महसूस करते हैं, कह सकते हैं आप, कहना ही। मैं नज़में ओढ़ कर बैठा हुआ हूँ, मैंने शॉल की तरह ओढ़ ली है, मैं नज़में ओढ़ कर बैठा हुआ हूँ, ठिठर जाता हूँ अंदर से अगर कोई कोना उठाकर मेरे मिसरे की तशबीह ढूंढता है। मैं नज़मों के अंदर नंगा हूँ, जब कोई चोट लगती है नई एक नज़म कह के ओढ़ लेता हूँ ताकि कोई मेरा जख्म ना देखे। बहुत बहुत। गुलजार साहब, यहाँ पर थोड़ा हम शायद लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, त्रिवेणी गुलजार साहब की एक महान विधा है जिस पर उन्होंने लिखा है। तो त्रिवेणी कैसे शुरू हुआ? आपको कैसे लगा कि इस फॉर्म में मैं एक्सपेरिमेंट करूं, इस तरह से लिखूं? क्योंकि सबको इतना इतना खूबसूरत लगा था वो आपने जो प्रयोग किया, और आज तक गूंजता है हम सबके जहन में। तो उसकी शुरुआत कैसे? वो कुछ कुछ डूडलिंग की तरह होता है कि आप डूडलिंग कर रहे हैं बैठे बैठे, उसमें एक शक्ल बन गई कि यार ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, देन यू ट्राई अनदर। ये इट्स अ हैबिट विद एवरी पेंटर, इट्स अ हैबिट विद एवरी राइटर। वो काटता है तो कुछ को उसको काट रहा है, नहीं पता नहीं लगे ये इसको लफ्ज़ के लफ्ज़, क्यों उसकी एक शेप बन गई। अब आप नज़म काटते हैं पेपर पे तो भी उसको, आउट ऑफ दिस इट हैपेंड कि उड़ के जाते हुए पंछी ने बस इतना ही देखा, देर तक हाथ हिलाती रही वो शाख फिजा में,
उड़ के जाते हुए पंछी ने बस इतना ही देखा, देर तक हाथ हिलाती रही वो शाख फिजा में, अलविदा कहने को या पास बुलाने के लिए। वो मजेदार लगी कि ये हर चीज का एक और पहलू निकलता है। दो लाइनें कहने के बाद उनके अंदर एक और मिसरा है, उसको अगर निकालें तो उसकी तशबीह मुझे समझाने के लिए लिखनी पड़ी कि गंगा जमुना संगम पर एक तरह बहती है और दोनों रंगों से पता चलती है। उनके नीचे एक सरस्वती बहती है, अगर आप वो सरस्वती दिखा दें ऊपर लाके तो त्रिवेणी हो गई, और नाम इसीलिए त्रिवेणी दिया। क्या बात। तो ये त्रिवेणी की एक आध और अगर आप अब मेरे पास एक आध और सुनाए तो त्रिवेणी। आई रियली थिंक दैट इट इज अ लैंडमार्क वर्क, इतना पिथी, इतना प्रिसाइज। और आज की युग में अभी हम बात करते हैं कि पीपल डोंट हैव टाइम, दे आर लुकिंग फॉर शॉर्टर फॉर्म। व्हाट बेटर देन त्रिवेणी टुडे? जी हाँ, वो त्रिवेणी शुरू हुई, अब पाकिस्तान में भी बल्कि उर्दू में त्रिवेणियाँ लिखी जा रही हैं या हिंदी में भी लिखी जा रही हैं, और वहाँ त्रिवेणी बैठक शुरू हो गई है पाकिस्तान में, उर्दू में त्रिवेणी की बैठक करना। अब उस मुझे एक तो जावेद साहब की तरह मेमोरी होती तो सारी सुना देता, वो है नहीं मेरी, लेकिन ये है कि बस गुलजार साहब की हंस के आए हंसते हुए आए, मुझे देखा और आदाब कहा और चल भी दिए। कल का अखबार था, पढ़ भी लिया, वाह वाह। है ना, सी कि पहचानो ऐसे लग रहा है ये गुलजार साहब, मैं मतलब आपकी बारे में बहुत बात कर चुका हूँ, पर एक वन थिंग आई ऑलवेज फील, आई थिंक मेनी ऑफ अस हियर, वेरी वेरी इवॉल्व्ड ऑडियंस हियर, आई थिंक we see Gulzar Saab not trying to solve life for us, but deepening the mystery of life. जिंदगी में और गहरे आपको ले जाते हैं, और कई बार आप लोगों को तैरने के लिए खुद छोड़ देते हैं कि भाई अब तुम तैरो, आप बताइए मैं ले मुझे, आया हूं। क्या ये सही नहीं है कि आप मतलब हजारों साल की जिंदगी जानते हैं, जहाँ से हम शुरू हुए वहाँ तक जानते हैं, 5000 साल की नॉलेज तो है हमारे पास। हैज एनीबडी बीन गिवन टू अ कंक्लूजन? आज तक क्या हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच गए कि बस यही है? और हर बार हम कहते हैं आने वाली नस्लों के लिए, सच पूछिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी नस्लों के लिए क्यों, वही बहुत है। डोंट गिव, बिकॉज मुझे लगता है आपकी नस्ल आपके पेरेंट्स से बेटर है, उनकी उनके दादाओं से बेटर थी, और आने वाली नस्ल क्या आप ही को फॉलो करेगी? वी आर नॉट क्रिएटिंग रोबोज, वी आर ह्यूमन बींग्स, है ना, और ये बदलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ भी कायम नहीं, कायम है जो बस मैं हूं, मैं जो बदलता रहता हूं। आने वाली जनरेशन की जब आप बात कर रहे हैं, एंड अभी मैंने कहा कि इंस्टेंट हो गया सब कुछ। एक वक्त था कि आप कुछ लिखते थे और सुबह थे उठकर उसको फिर पढ़ते थे और लगता था कि शायद इट वाज नॉट वर्थ इट, एंड आप उस कागज़ को फाड़ के फेंकते थे। टुडे यू इंस्टेंटली राइट एंड इट इज़ इंस्टेंटली पब्लिसाइज्ड एंड पब्लिश्ड। आपको वो वक्फा जो था कि जिसमें आप उसको फिर से नज़र डालेंगे उसके ऊपर, वो ही रहा नहीं। इंस्टेंट पब्लिकेशन है, इंस्टेंट का युग है, एवरीथिंग इज, माइक्स की कमी नहीं है, मंचों की कमी नहीं है। इनफैक्ट दे आर मोर स्टोरी टेलर्स टुडे देन ऑडियंस। हर एक को अपनी कहानी कहनी है, इससे जब तक आप अपनी कहानी बताएं, वो अपनी कहानी आपको बताना चाह रहा है, वो तो आपकी तो अच्छी, मेरी सुनिए। सो एवरीबडी इज इन दैट वर्ल्ड। वेयर डू यू सी ये तसल्ली जो चाहिए पोइट्री के लिए, एक सुकून जो चाहिए, एक ठहराव जो चाहिए, वो उसके बिना क्या पोइट्री रहेगी, या पोइट्री का भविष्य क्या होगा, कविता का फ्यूचर क्या रहेगा उसका? देखिए, पोइट्री की फॉर्म की बात कर रहे हैं आप, वो रहेगी या नहीं रहेगी? कंप्यूटर पे आप पेंटिंग्स भी बना रहे हैं, कंप्यूटर भी पेंटिंग्स आपके लिए लिख रहा है। इज इट जस्ट अ प्रोडक्ट और अ फॉर्म? क्या हम सिर्फ फॉर्म्स के लिए लिख रहे हैं?
आप लिख रहे हैं, आप अपना एहसास दर्ज कर रहे हैं, अपने वक्त को दर्ज कर रहे हैं, बाकी अगली नस्ल को ये वक्त नहीं मिलने वाला है, वो अपना वक्त खुद पैदा करेंगे और खुद दर्ज करेंगे। पर जैसे शब्द हैं, लफ्ज हैं, वोकेबुलरी सिकुड़ रही है। मैं हमेशा ये मानता रहा हूँ कि शब्द, एक लफ्ज जो एक है, उस संस्कृति का कैप्सूल है। ऑलमोस्ट जब आप कहते हैं संदेशे, तो आप संदेश से ही कह सकते हैं, एसएमएस कहकर छुटकारा नहीं पा सकते जी। उसमें जो इमेजरी आती है, सिम्बियोटिक्स उसकी है जो, वो अलग है। तो वो जब शब्द धीरे धीरे उन समाप्त हो रहे हैं या उनकी हत्याएं हो रही हैं, रिप्लेस हो रहे हैं, एंड वोकैबुलरी थोड़ा सिकुड़ रही है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि आने वाले लिखने वालों के सामने चुनौती होने वाली है कि बहुत कम शब्द जो संग्रह है या ज्ञान है उसके साथ और मिक्स्ड है, और छोटे वर्ड्स होते जा रहे हैं, उनको आधा आधा आप लिख रहे हैं। और पहले तो हमें लगता था कि वो जो छोटे छोटे फॉर्म्स बनते हैं शब्दों के, वो शायद सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए व्हाट्सएप पे यूज़ हो रहे हैं, पर अब धीरे धीरे लोग उसको रियल लाइफ में भी यूज़ करने लगे। तो वो जो बड़े बड़े शब्द थे जिनकी ज़रूरत थी और रहेगी, क्योंकि भाषा का इस्तेमाल सिर्फ अगर धंधे के लिए करना है तो काम ठीक है, लेकिन भाषा का इस्तेमाल एहसासात के लिए करना है तो शायद उसमें नुआंस तो जिंदा रहना चाहिए। सो उसके हिसाब से जिंदा रहना चाहिए, उसके नुआंस को, हाँ। तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि कोशिशें होनी चाहिए, या जैसे है वैसे बहते हुए, आपने कहा कि फॉर्म की इतनी ज़रूरत नहीं है, फीलिंग तो रहेगी, तो कहीं कोई कुछ लगता है आपको, चिंता लगती है इसको देखकर? जी, चिंता तो नहीं है, मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ उसे। चिंता नहीं है उस बात की, क्योंकि उसमें गलत नहीं है। आपने लफ्ज नॉनसेंस इस्तेमाल किया है, आपके पास कोई हिंदी का लफ्ज था? मैं कह सकता हूँ उसको एक तरह से, जैसे आपने कहा कि वो शब्द जिद करता है कि मैं रहूं तो मैं भी रहने देता हूँ उसको। हाँ, तो आपके पास अगर वो होता तो या तो आप अपनी ज़मीन अपनी छोटी कर लें कि सिर्फ यही ज़बान है, मैं यही ज़बान बोलूँगा और इसी ज़बान में बात करूँगा, है ना। और या अपनी ज़मीन थोड़ी सी फैला लें, क्योंकि दूसरे लोगों के पास एक और ज़मीन है जिसके साथ आप ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, है ना। ये ज़बानें उन ज़मीनों की तरह हैं, और ये उन दरियाओं की तरह, उन पानी की तरह हैं जो जगह जगह जमा हो जाते हैं। और ज़रूरी नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है कि आप बस बाउंड टू दिस लैंग्वेज। और आपकी जो अपनी ज़बान है उसकी तब्दीली को भी महसूस कीजिए कि वो तब्दील हो रही है आपकी जनरेशन्स के साथ साथ। आपकी जनरेशन बढ़ रही है आगे, वो एम्बाइब कर रही है और कितनी जगहों से। तो गुलजार साहब मुझे तो जैसे मैं उर्दू में मुझ पे एतराज़ किया गया था, हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू कि कैसे महकती खुशबू। हाँ, अब खुशबू को अगर नाउन बना दें तो महकती वर्ब बन जाता है ना, वरना महकती और खुशबू एक ही बात है ना। लेकिन ये आपकी जो एक खूबसूरती आपकी लैंग्वेज में है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप बांसुरी की तरह हैं, और ढोल के बीच में वो बांसुरी सुनने के लिए थोड़ा दूर जाना ज़रूरी है। और वो कई बार जो नॉइज विच इज़ इंक्रीजिंग टुडे अराउंड अस मेक्स मी वरीड दैट कविता के लिए जो बांसुरी सुनने के लिए एक थोड़ी सी डिस्टेंस चाहिए, थोड़ी सी शांति चाहिए, ढोल के बीच में खो सकती है। ऐसा मुझे लगता है कई बार कि शायद हमें कोशिश भी करने की ज़रूरत है। हम सब कुछ इस पे नहीं छोड़ सकते कि किसी न किसी फॉर्म में बचेगी। आई थिंक द लवर्स ऑफ पोइट्री वाज गैदर्ड हियर। It's somehow this flame has to be taken forward, and poetry is also a responsibility as it is। जितनी वो सहज है उतनी हमारी जिम्मेदारी भी है शायद कहीं, क्योंकि हमारे होने की शर्त भी है शायद। जी, मैं एक दो मिसरे कहूँ। सातों बार बोले बंसी, एक ही बार बोले ना, तन की लागी सारी बोले, मन की बाती बोले ना।
वो जिससे आप दूर होके सुनना चाहते हैं, वो सब बोल रही है, सातों सुर में बता रही है कि दो सातों नोन है, उसमें एक उसकी खामोशी है जो मन की लागी है। सातों बार बोले बंसी, एक ही बार बोले ना, मन की लागी तन की लागी सारी बोले। जहाँ जहाँ आप फूंक रहे हैं वहाँ तो बोल रही है, पर वो मन की लागी नहीं बोल रही। आप वहाँ पे फूंक के देखिए तो आपको पता चले कि आपने कैसे तब्दील किया है इसे। हम जबान के बोलते हुए भाई तलाश करना एक सादा जबान थी, गुम हो जाना, जैसे मुझ पे एक उस्ताद ने एतराज किया था, नाम गुम जाएगा, नाम गुम हो जाएगा कहिए। मैं कहा गुम जाएगा क्यों नहीं हो सकता वो, जब आपने तलाश को, अरे साहब बहुत तलाशा मिला ही नहीं, तलाश को, तलाश करना को आपने तलाशा बना लिया ना। इट्स अ ग्रोथ ऑफ योर ओन लैंग्वेज, एक्सेप्ट इट, डोंट स्टिक टू दैट ग्रामर, बिकॉज वो ग्रामर आपके लिए खाने बना के रख देती है कि इस खानों के अंदर से चलिए, आप तो बीच में से लाइन हटा दो। स्टापू खेलते हैं ना, स्टापू बना के रखा हुआ जबान को, इस लफ्ज से कूदे, इस लफ्ज से जाके, और कूद के रुख बदल दी। स्टापू को और क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कुछ कहते हैं, हॉपस्कॉच, हाँ हॉपस्कॉच, हॉपस्कॉच। जी हाँ, मैं मुझे स्टापू याद है, मुझे अंग्रेजी का याद नहीं हुआ, सुना तो था। तो सर वही मेरा था कि जो शब्दकोश है उसके लिए आई फील दैट लगातार कोशिश है उसको पुश करने की भी होनी चाहिए। एज फार एज यू सेड एक्सपेरिमेंट, ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंट, यही आपकी खूबसूरती है कि जो भी आप लिखते हैं, जो भी आप कहते हैं, कहीं भी मैंने ये नहीं देखा कि आपके अंदर होप आप नहीं छोड़ते हैं, आशा नहीं छोड़ते हैं। और सबको मुझे चिंता हो रही तो आपने कह दिया कि नहीं, वो अपनी तरह से एक रास्ता बनाएगा, वो निकलेगी चीज़। ये होप ही गुलजार साहब को गुलजार साहब बनाती है। जी, वही तो है मेरे साथ। और ये कि मैं सिमटने को तैयार नहीं हूँ, खुलने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। वाह वाह। हाँ, आप खींच तो कि मेरे उधेड़ दीजिए मुझे, आई एम रेडी फॉर इट, लेकिन आप सीख के मुझे वहीं पे लिहाफ बना दें मेरे किसी रजाई का, मुझे तो वो मुझे पसंद नहीं। गुलजार साहब शायद बहुत कम ऐसे लेखक होंगे और क्रिएटर्स होंगे जो एट द सेम टाइम आर आइकोनोक्लास्ट एंड एट द सेम टाइम आर स्कल्प्टर्स। आप मूर्तियां बनाते भी हैं, मूर्तियां तोड़ते भी हैं। जी, तो- सो स्वीट, सो नाइस, So- क्या खूबसूरत तस्वीर दी आपने, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। गुलजार साहब ने जिस फॉर्म में लिखा है, जिस तरह से लैंग्वेज को कि डिसिप्लिन को फॉलो भी किया है और तोड़ा भी है, और ये लाइसेंस आपको ही देते हैं गुलजार साहब, सबको नहीं मिलता ये। उसके लिए कितना आसान तरीका है कि आप सिर्फ खुद को रहिए, आप अपना आप में रहिए, आप दूसरा बनने की कोशिश न कीजिए, अपने आप में रहिए, एंजॉय कीजिए। बहुत आसान तरीका, लेकिन खुद को पहचान लेना आसान नहीं है, वो मुश्किल काम है। उसके लिए आपकी जरूरत है हमें। नहीं खुद को खुद से मिलवाते हैं गुलजार साहब, हमको हमसे ही मिलवाते हैं, और देखिए उसके एवज में इनको तालियां मिलती हैं, मिलवाते हमको हमसे। गुलजार साहब, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं और चाहेंगे कि आपकी एक तो ऐसी रचना जो आपको लगता है कि मैं जितना भी पढ़ लूँ कभी पुरानी नहीं होती, आपके जहन में पुरानी नहीं होती, वो कौन सी चीज़ है जो सुना सकते हैं आज आप? और आप अभी जिक्र हुआ कि कोई नई चीज़ें भी अगर आप शेयर करना चाहें तो इट्स योर इवनिंग गुलजार साहब। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ए कैटलिस्ट हियर, सो आप जो कुछ भी शेयर करना चाहें। इजाज़त है आप लोगों से कि मैं वहाँ खड़ा होकर पढ़ दूँ? ये मैं सब नहीं सुनाऊंगा, घबराइए नहीं, ये इसलिए रख लेता हूँ कि कोई मुझे पता नहीं, कोई मुमतहिन
एग्जामिनर कहीं कोई टेक्स्ट बुक से बाहर का सवाल ना कर ले। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं बात को साफ नहीं कर रहा हूँ, कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो थोड़ी सी मिस्ट्री मेक्स इट पोइट्री। जैसे प्रोज या कहानी तो ज़मीन पर चलती हुई बातचीत है ना, तो वो शायरी थोड़ी सी ज़रा 2 इंच ज़मीन से ऊपर चलती है, तो वो ताकि गैप आप खुद भर लें नीचे तक। तो कुछ ऐसी नज़में जो मैंने क्यों लिखी हैं ये तो मालूम है, पर समझ में नहीं आई मेरी भी, और उनके मौजू, उनका सब्जेक्ट मेरा ख्याल है अगर आप महसूस कर लें तो अपने आप में तलाश कर लीजिए। जैसे मैं कहूँ कि मैं गमला ढूंढ रहा हूँ, मुझे एक लफ्ज़ बोना है। मैं गमला ढूंढ रहा हूँ, मुझे एक लफ्ज़ बोना है। मैं अक्सर जिक्र सुनता हूँ मगर माने नहीं आते। मुझे वो लफ्ज़ बोना है। मैं गमला ढूंढ रहा हूँ, मुझे एक लफ्ज़ बोना है। मैं अक्सर जिक्र सुनता हूँ मगर माने नहीं आते। उगे तो शायद उसका रंग निकले या कोई पहचान खुशबू की। उगे तो शायद उसका रंग निकले या कोई पहचान खुशबू की। कोई पत्ती या कोंपल निकले तो आकार की शायद समझ आए। मज़ा आता है उसके जिक्र में, मुझे माने नहीं आते। मैं गमला ढूंढ रहा हूँ कि वो एक लफ्ज़ बोला। खोद कर निकाला। रात और दिन रोज आते हैं हमारे पास, तो अब कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं ये समझ नहीं आती। वही है गमला। खोद कर निकाला आफताब को जमीन से, जहां से वो आता। खोद कर निकाला आफताब को जमीन से और उफक के पास बो दिया। समंदरों ने सींचा और हवा ने बागबानी की। दिन निकल रहा है। खोद कर निकाला आफताब को जमीन से और उफक के पास बो दिया। समंदरों ने सींचा और हवा ने बागबानी की। पूरे एक दरख्त की तरह उगा है ये दिन। पूरे एक दरख्त की तरह उगा है दिन। शाम तक पके हुए तमाम फूल फल धीरे धीरे वो रेड होते गए। शाम तक पके हुए तमाम फूल फल रात ने उतारे और आसमां के छींके में टांग दिए हैं। अब वो छींके मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन छींके लफ्ज मेरा बचपन से सुना हुआ है। वो जिसमें ताकि बिल्ली झपटा ना मारे, ऊपर दही और मक्खन ऊपर रख दिया, तो वो सारे दिन के यही शब्दों की जिद है सर, वो हट नहीं सकता वहां से, वहीं रहेगा। और जो हो रहा है वो मैं आपको सुना सकता हूँ, और वो भी एहसास है कि जो समझ में नहीं आ रहा मेरे। तो क्या हुआ है ये रात दिन को भला, क्या हुआ है ये रात दिन को भला। दिन निकलता है एहतियात के साथ, बड़े कॉशन। क्या हुआ है ये रात दिन को भला। दिन निकलता है एहतियात के साथ और शाम फिक्रमंद लगती है। रात होगी तो जाने क्या होगा, एक बेचैनी कुरकुराती रहती है सर में। ख्वाब आए तो चौंक जाते हैं, अजनबी कोई नींद में आया हो जैसे। क्या हुआ है ये रात दिन को भला। बस इतनी सी बात थी। और मुझे एक अक्सर फरमाइश आ जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं
आज फरमाइश मेरे पास नहीं आई तो मैंने एक नज़म लिख ली। पुरानी नज़मों के खोलने से कभी कभी होती है एलर्जी। पुरानी नज़मों के खोलने से कभी कभी होती है एलर्जी। किसी पुराने ख्याल की धूल उड़ के जाती है नाक में। किसी पुराने ख्याल की धूल उड़ के जाती है नाक में, तो झड़ी सी लगती है एक छींकों की, और कुछ रोज नज़ला लग जाता है पुराने दिनों का मुझको, और कुछ रोज नज़ला लग जाता है पुराने दिनों का मुझको। अब ये पुराना सा एक ख्याल कि दिन तो टोकरी है मदारी की। हमारे यहाँ एक बब्बन नाम का मदारी आया करता था, आके खोलता, कभी कबूतर निकाल देता था, कभी उसमें से कोई पौधा निकाल देता था, कभी कोई सांप खड़ा कर लेता था। पुराना सा एक ख्याल कि दिन तो टोकरी है मदारी की और रात जैसे उसका ढक्कन। गिरा के ढक्कन तमाशा अपना उठाया बब्बन मदारी ने, और गली पार करके गया वो। मदारी मुझको खुदा लगा जब मैं छोटा था। जब मदारी मुझको खुदा लगा जब मैं छोटा था, तब खुदा मुझे अब मदारी लगता है जब बड़ा होके देखता हूँ तमाशे को। जी बेटा, थैंक यू। गिरा के ढक्कन तमाशा अपना उठाया बब्बन मदारी ने, और गली पार कर गया वो। मदारी मुझको खुदा लगा जब मैं छोटा था, तब खुदा मुझे अब मदारी लगता है जब बड़ा हो के देखता हूँ तमाशे उसके। किसी किसी नज़्म को निकालो तो उड़ने लगते हैं खुश्क ज़र्रे, वो नज़्म जो सूखने लगी है पड़ी पड़ी कागज़ों के अंदर। वाह वाह वाह। किसी किसी नज़्म को निकालो तो उड़ने लगते हैं खुश्क ज़र्रे, वो नज़्म जो सूखने लगी है पड़ी पड़ी कागज़ों के अंदर। वो नज़्म जो उसने छपवाने नहीं दी थी, वो नज़्म जो उसने इसलिए न छपवाने दी थी कि उसको लोग पहचान लेंगे। क्या बात। वो अब भी जी करता है छपवा के देखूं वो खुद को कैसे पहचानती है उसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पुरानी नज़मों से एक महक आती है मुझे, उन रज़ाइयों की जो गर्मियों में सुखाई जाती हैं धूप में। अपने घरों में हमने देखा होगा ये सब करते हुए। पुरानी नज़मों से एक महक आती है मुझे उन रज़ाइयों की जो गर्मियों में सुखाई जाती हैं धूप में, इसलिए कि इस बार जब वो उड़े हैं नमी न रह जाए पिछली नींदों की, उसमें कोई चकत्ता हो ख्वाब का तो वो साफ कर दें। बहुत अच्छा। भरी सी एक छींक आके रुक जाती है हमेशा पुरानी नज़मों की खोलने से, कभी कभी होती है एलर्जी। देखिए अभी यही खूबसूरती है गुलजार साहब की। अब ये पुराने की तारीफ कर रहे थे या पुराने की बुराई तो ये पता नहीं, लेकिन लेकिन एलर्जी भी है और हम सबको उससे प्यार भी हो रहा है। दिस इज गुलजार साहब। एक नीम शब्द का तस्वुर है, अगर मैं आपको बयान कर पाऊँ कि वही कि जो मैंने महसूस किया है वो बात हुई है कि नहीं। अब ये नीम शब्द वो है जो पूरी रात की तरह का अंधेरा भी नहीं हुआ और ना वो दिन का है। ये आधी रात नहीं है, ये नीम शब्द है। आधी नींद है, आधी रात है, आधा दिन सा है, कुछ इस तरह का मलगजा सा। अब मैंने वो कोशिश की है कहने की कि ये नीम शब्द जिसमें जी रहे हैं ये उतर रही है न चढ़ रही है ना। अगर आप
किसी वक्त महसूस होता होगा हालात में जब जज्ब रहते हैं, गुम रहते हैं। ये नीम शब्द जिसमें जी रहे हैं, उतर रही है न चढ़ रही है, चिपक गई है लिहाफ पर जिस तरह पुराना गिलाफ चिपके। अब लिहाफ पर वो चिपके हुए जो उसके वो हैं, तो वो मुझे महसूस होता है खींच के भी नहीं। न ये नीम शब्द जिसमें जी रहे हैं, उतर रही है न चढ़ रही है, चिपक गई है लिहाफ पर जिस तरह पुराना गिलाफ चिपके। ये आसमां बासी लग रहा है, खटास की बास आ रही है। निजाम फेंटा गया है सारा, फिजाओं में भाप उड़ रही है। न खींचे से उतरती है शब, न नोचने से उधड़ रही है ये नीम शब्द जिसमें जी रहा। अब वो एहसास बड़ा पर्सनल होता है और उसे कहना। मैं वापस आता हूँ सरासी, बजाकर डूडूगी लफ्ज़ों की अक्सर जमा कर लेता हूँ लोगों को। बजाकर डूडूगी लफ्ज़ों की अक्सर जमा कर लेता हूँ लोगों को। मदारी हो गया हूँ रंजो गम का, मदारी हो गया हूँ रंजो गम का। मदारी आते हैं ना, क्या क्या तमाशे करके जाते हैं, वो याद रखें, वो बचपन है। कभी मुंह से आग निकाल लेते हैं, कभी जेब से कोई चीज निकालते हैं और चंपा कर देते हैं, तो कबूतर था, सिक्का निकालते हैं तमाशा। हाँ। बजाकर डूडूगी लफ्जों की अक्सर जमा कर लेता हूँ लोगों को, ऐसे ही मदारी करते हैं। मदारी हो गया हूँ रंजो गम का, पटारी में जमाना लेके चलता हूँ। किसी लम्हे की एक दिया सिलाई जलाकर खला में ही मैं कर देता हूँ रोशन याद, पुरानी याद कोई। किसी लम्हे की दिया सिलाई जलाकर खला में ही मैं कर देता हूँ रोशन पुरानी याद कोई। और आँखों के पिघलने से पिघलते ही बुझा देता हूँ उंगली जलने से पहले। मदारी हूँ, मदारी रंजो। वाह वाह वाह, क्या बात है गुलजार। हवा में खोल कर मुट्ठी उड़ा देता हूँ लड़ियां जुगनुओं की। हवा में खोलकर मुट्ठी उड़ा देता हूँ लड़ियां जुगनुओं की। किसी की जेब में कोई पुराना खत गुटरगू करने लगता है तो पढ़कर मैं सुना देता हूँ ये लिखा है उसमें। मैं मुट्ठी भर के खबरों की मसल के फाक जाता हूँ, सुलगती हैं जो सीने में तो मुंह से आग के गोले उड़ाता हूँ। मदारी हूँ, मदारी, मदारी रंजो गम का। क्या बात है, क्या बात है गुलजार साहब। शुक्रिया। Such a privilege listening to बस him. कुछ थोड़ी सी हैं। अब ये खत्म करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप खांसना शुरू कर दें, हाँ, और या फिर सीटियां बजाना शुरू कर दें। मैं सब कुछ, सुन लीजिए क्यों करता हूं। मुझे वक्त का अंदाजा दे दीजिएगा। मैं अर्ज करूं, ये अंदाजा अगर वक्त का है तो मुझे दे दीजिएगा, ये अब उनके हाथ में नहीं है, मेरे कागजों पर है। मैं सब कुछ नज्म में क्यों घोल देता हूं। चलिए ये सुन लीजिए एक। मैं सब कुछ नज्म में क्यों घोल देता हूं। अजियत, तलखी, बेचैनी, उदासी, ख्वाहिशें, हसरतें सारी, मैं सब कुछ नज्म में क्यों घोल देता हूं। बुलंद आवाज क्यों एहतजाज नहीं करता, मैं प्रोटेस्ट क्यों नहीं करता। उदास हो जाता हूं तो अगरबत्ती जला लेता हूं चुपकी, खामोशी की। उदास हो जाता हूं तो अगरबत्ती जला लेता हूं चुपकी, निचोड़ा करता हूं सब तलखियां अपनी और अपनी नज्म में सब घोल देता हूं।
निकल सकती अगर चिंगारियां नज़मों के मिसरों से, निकल सकती अगर चिंगारियां नज़मों के मिसरों से। कभी ऐसा भी होता लफ्ज़ टकराते धुआं उठता, बुलंद आवाज़ कहता मैं कि मेरे हाथ में एक नज़म है, मैं घोंप दूंगा कि इसकी धार खंजर से ज़्यादा तेज़ कर ली है। मेरा ख्याल है थोड़ी सी वार्निंग आ गई है तो ख़त्म कर लें। और मैं एक जिक्र करना चाहता हूँ बस कि हार्पर कॉलिंस के साथ मेरा रिश्ता ऐसे ही रहा है और ऐसा ही रहेगा जब तक हूँ। हमारी अगली किताब जो तैयार हो रही है मैं उसका सिर्फ जिक्र कर देना चाहता हूँ। यहीं पे किसी दिन मौका देंगे, इनवाइट करेंगे, बुलाएंगे, आप आएंगे तो पढ़ दूंगा। उसका नाम है आमची मुंबई। मुंबई में रहकर जितना देखा है, लिखा है, कहानियाँ लिखी हैं, नज़में लिखी हैं, वो सब उस किताब में आएंगी। मैं इसलिए मुंबई की एक नज़म पढ़ने के बाद ये बात ख़त्म कर लूँ। एक नज़म और बर्दाश्त कर लीजिए। मुंबई। अब जब मैं आया था तो इसका नाम मुंबई था, इसलिए कहीं मुंबई आएगा, कहीं मुंबई आएगा। ये शहर जो आपके साथ बातचीत हो रही थी उसी पे थोड़ा सा अजाफा है और आपके साथ और मुलाकातें करनी पड़ेंगी, आपकी नज़में सुननी है जो मेरे बारे में ना हो। ये शहर वो नहीं जहां मैं 60 साल पहले पहली बार आया था। अब आप तो सब तो 60 के नहीं हैं, आप तो बहुत यंग हैं, आप तो बहुत नौजवान हैं यहाँ बैठे हुए। सच यंगस्टर्स से नई पौध कितनी खूबसूरत है, नई जनरेशन। ये शहर वो नहीं जहां मैं 60 साल पहले पहली बार आया था। ये खुश मिजाज शहर जैसे घर का बड़ा हो, संभाल लेता था हर एक छोटे बड़े को। ये खुश मिजाज शहर जैसे घर का बड़ा हो, संभाल लेता था हर एक छोटे बड़े को। हर एक से कद मिला के चलना एक अंदाज था इसका। हर एक से कद मिला के चलना एक अंदाज था इसका। अब पास से गुजरता हूं तो छूता भी नहीं। ये शहर वो नहीं जहां मैं 60 साल पहले आया था, जब उन दिनों में ट्रामें बीचों बीच सड़क चलती थी। यहाँ उन ट्रामों में खड़ा हुआ कोई शख्स नहीं होता था। खड़ा होना बस में या ट्राम में कहीं भी अलाउड नहीं था उस वक्त। ये शहर, जब उन दिनों में ट्रामें बीचों बीच सड़क चलती थी, यहाँ मुसाफिरों की आती जाती टीमें लगती थीं। बसों की बदहवासी भी नहीं थी। ये पटरियों पर लोग टकराते थे, इस तरह नहीं भीड़ में। न पटरियों पर लोग टकराते थे इस तरह भीड़ में। हर एक सड़क के कोने पर ईरानियों के रेस्टोरेंट थे। हर एक सड़क के कोने पर ईरानियों के रेस्टोरेंट थे। अब मॉल्स खड़े हैं। ये शहर वो नहीं जहां मैं 60 साल पहले आया था। किसानों, कामगारों के जुलूस और हड़तालें भी देखी थी यहाँ पर। एक आबरू थी, कारीगर नौकर नहीं लगते थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसानों और कामगारों के जुलूस और हड़तालें भी देखी थी यहाँ पर। एक आबरू थी, कारीगर नौकर नहीं लगते थे। अमीरी और गरीबी में तो फर्क तब भी था। गरीबी इस तरह बदसूरत न लगती थी। अमीरी और गरीबी में तो फर्क तब भी था। गरीबी इस तरह बदसूरत न लगती थी। ये शहर फिक्रमंद तो रहता था हमेशा, परेशान न रहता था।
ये शहर फिक्रमंद तो रहता था हमेशा, पर इस तरह ये शहर परेशान रहता था। तब इतने बल नहीं थे इसके आसमां पर, ये शहर वो नहीं जहां मैं 60 साल पहले आया था। इस शहर को भी मुझसे मगर एक ही गिला है, तुम वो नहीं जो 60 साल पहले आए थे। वाह वाह वाह। और गुलजार साहब, ये शहर तब तक, ये शहर ऐसे ही रहेगा। गुलजार साहब, जब तक इस शहर में गुलजार साहब हैं, इस शहर को कोई नहीं बदल सकता। आप सबका, आपने बहुत बर्दाश्त किया। और मुझे I really want to thank all of you for being here today. And as Harvard Collins की जानिब से ये हुआ है, और I think असद साहब भी यहाँ होंगे, उन्होंने Opera House I think is hosted this. मैंने कुछ नहीं कहा। Thank you, Guldar Sahab. Oh, Thank really you, Guldar want to Sahab. Thank you, all of you. Prasun ji. Enchanting evening. I have a few more people to thank before we proceed to the next part of the evening. Royal Family of Gondal, Mr. Ashish Doshi, Honorary Director, Asad Lalji, Curator, Royal Opera House, the Avid Learning team, especially Aisha. May I invite Anand, our CEO, Anand Padmanabhan, Kriti Tyagi, our Director Marketing, Naya Singh, our Senior Manager Marketing, Asad and Aisha, please, on stage. Thank you. We're going to move to the next part of the celebration through the language Gulzar Sahib holds so dear, music. I'm delighted to welcome back the incredibly talented young artist, Neha Khorode, who will present a beautiful rendition of some of the most cherished melodies, perfectly aligned with Avid Learning's philosophy of dimensionalizing our thematic programming with the performing arts. Neha will be accompanied by a wonderful ensemble, Vivek Maikar on keys, Parth Jobanpura on percussion, Protim Gohen on guitar, and Rupjit Das on sound. Please put your hands together to welcome them. Good evening, everybody. I heard from backstage that you were all having a very, very good time. The song that I just sang a few lines of is Gulzarji's first film song. And it only made sense to start my set with a few lines from that. It is such a privilege to get to sing Gulzarji's songs at any concert, but it's also a little terrifying to have to do that in front of the man himself. This evening should be a collaborative one. I hope that you can all join in on some of the songs that you might be knowing. Let's have a good time. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं हो हैरान हूँ मैं तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं हो हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं हो परेशान हूँ मैं ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ तू कहीं टुकड़ों में जी रही है अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं
टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। आजा के बंदर है ये जिंदगी की गली, एक ही चांस है, आगे हवा ही हवा है, अगर सांस है तो ये रोमांस है। यही सुनते हैं, यही कहते हैं, जो भी आता है जाता है वो फिर से जाता नहीं। आजा आजा दिन छोड़े, रात की मटकी तोड़े, कोई गुड लक निकाले, आज गुल्लक तो फोड़े। दिल दिल ताला मेरा तेली का तेल, कौड़ी कौड़ी पैसा पैसा पैसे का खेल, चल चल सड़कों पे होगी ठंड। After that, tan-tan-tan, I mean, there's no other thing to say. Thank you so much, Neha, Vivek, Parth, Preetham, and Ruppreet, for this wonderful performance. What a great way to end this evening. I see the upstairs is also nicely full. Thank you all for staying. I know we're coming in between you and dinner, and me, it's happy hour, but that's another story. Thank you for being here. I mean, Gulzar Saab was a dream. And Prasoonji also did a wonderful job. Thank you to our partners, HarperCollins. You already heard everyone's names before, so I'm not going to bore you. But do come back again. We have Barmer Boys on the 18th, Wednesday, the global ambassadors of Rajasthani folk and Sufi music. Just stalk us on social media and find out what we're doing next. But once again for being here. Have a wonderful evening.